Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Today in this video I will be starting with the disorders of the cardiovascular system. So before starting this video, let me remind you about the last class in which we have seen about the anatomy and physiology of human heart, that is cardiovascular system. So without wasting time, let's start today's class. So as we are going to discuss about the management of patients with the cardiovascular disorders, so let's take the first one, that is coronary vascular disorders. What are coronary vascular disorders? The diseases or the conditions or the disorders that affects the coronary arteries. Okay, so that is known as mainly coronary vascular disorders. Okay, so under this we are going to discuss about three main disorders or diseases of these coronary arteries, that are arteriosclerosis or atherosclerosis. Okay, next one is the angina pectoris, and third one will be myocardial infarction. Okay, so before we move into the definition of this arteriosclerosis, or before we start the first condition, so I have told you in the last class there are mainly two types of the coronary arteries which are present in your body, which surround us or which are located at the posterior part of the heart. Understanding? So they are left coronary artery and right coronary artery. They will be supplying blood to the myocardium, and this blood is being sent to the lungs for the pulmonary circulation, and after oxygenation or after the oxygenated, so what happens, this blood is going to be sent back to the left atrium, and this left ventricle, this left ventricle is going to be contract. Okay, when the contraction of the left ventricle occurs, the blood will be ejected outside the heart and will be sent to the entire body through the systemic circulation. Okay, so this was all about some little bit introduction about the coronary arteries, because we are mainly going to discuss about this coronary arteries. So before I discuss about the definition, or before I tell you the definition about this arteriosclerosis, we must have to put some focus on the terminologies mainly. Okay, see, coronary arteries are mainly three types. Okay, so depending on the size, based on the size, sorry, so mainly there are three. First one is the large sized or medium sized, second one is the medium sized, and third one is the small sized. When this disease, that is arteriosclerosis, it affects the large or medium size coronary arteries, that is known as arteriosclerosis, you can see here. And if it affects the arterioles or small coronary arteries, that is known as arteriolosclerosis. Okay, so I hope you understood about these two terminologies. Okay, next thing is we are going to talk about the atherosclerosis. Okay, so what is atherosclerosis? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, तो वो उसके जो इंटरनल वॉल्स होते हैं, द इंटरनल वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज विल बी गेटिंग थिकनड, यानी वो थिक होते हैं. अंडरस्टैंडिंग? यानी उनके अंदर जो जगह होती है वो कम होती है. क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एक्चुअली क्या होता है, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द फैट, mainly cholesterol and some other substances like macrophages, WBCs, and all the substances which will be building up at the site, in the this one lining of, you can say, walls of this coronary arteries, and which may cause arteriosclerosis. Mainly यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको समझना क्या पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट जो ये है यहाँ पे, वो ये है कि mainly जो internal walls of the coronary artery है ना, so they may lose their elasticity, यानी वो रिकॉलिंग नहीं करेंगे. ठीक है ना? So why? Because there is the fat deposition. हम कहते हैं mainly when there is the deposition of fat or deposition of the substances inside the coronary artery, that is mainly known as plaque. Okay, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे, जब वो जो plaque जब ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर बनता है, तो इसकी वजह से ना जो ब्लड जो फ्लो होता है ना कोरोनरी आर्टरी में, वो रुक जाता है. मींस दैट देयर इज अ इंक्रीज्ड वेस्कुलर रेजिस्टेंस. अंडरस्टैंडिंग? देयर विल बी इंक्रीज्ड वेस्कुलर रेजिस्टेंस व्हिच मे लीड टू द ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, और जो ब्लड है ना वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर पास नहीं हो सकता, यानी इट मे नॉट प्रोसीड बियॉन्ड, इट मे नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड, व्हिच विल लीड टू सम सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस. ओके, लेटर ऑन that I will be discussing. Okay, so mainly I have told you that
and it will be mainly affecting the coronary artery, and where there is the build up of the mainly fats, understanding, so that will be cholesterol. जब कोलेस्ट्रॉल आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर बिल्ड अप होता है तो उसी कंडीशन को हम जिसकी वजह से ना जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना वो बहुत हार्ड होती है, that will become the hardening. The hardening of that artery is mainly known as atherosclerosis. Okay, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है और एक चीज, हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो टाइप्स का ये होती है, लेवल्स होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, हम दो टाइप में उसको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड दूसरा वन होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. इन दोनों का काम क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स का काम क्या होता है, इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फैट्स को, जो मसल्स के अंदर जो हो जाएगा या जो आर्टरीज के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर है, उनका काम होता है उनको रिमूव करना. ठीक है ना, उनके अंदर क्या काम होता है, उनको रिमूव करना. लेकिन मेनली क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है ना, ठीक है ना, उनको हम मेनली बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स उनको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है ना, अगर हम टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं, अगर इफ वी फाउंड देयर इज द एचडीएल इन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट मींस हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ठीक है और वहां पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं है या एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है. ठीक है ना, तो मेनली क्या होता है कि वहां पे जब ब्लॉकेज हो गया तो ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी, यानी वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्रेडिकाइन, साइटोकाइन, हिस्टामिन रिलीज हो सकते हैं और वहां पे क्या कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन, अंडरस्टैंडिंग. तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से मेनली क्या होता है, वहां पे ब्लड क्लॉट बनेगा और इस ब्लड क्लॉट के बनने के बाद क्या हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो है ना वो बहुत कम हो जाएगा, यानी हार्ट को ब्लड फ्लो कम बनेगा. ठीक है ना, विच में लीड टू द हाइपरटेंशन. ओके, सो कॉमनली as I have told you that there will be the hardening of the arteries where the fluid will be built up occurs leading to the decreased arterial blood flow that will be caused by the plaque. Plaque आपको समझना होता है, plaque का मतलब होता है deposition of the substance. It could be fatty substance, it could be cholesterol, it could be macrophages, it could be WBCs in the walls of in the spaces in the walls of the coronary artery. That is mainly known as atherosclerosis. Okay, so this was all about the definition of the atherosclerosis. Okay, so next thing let's discuss about the causes, or we can say etiology. Etiology का मतलब होता है causes, यानी क्यों हुआ है atherosclerosis, जो हुआ है ना वो क्यों हुआ है. ठीक है, सबसे मेन cause जो होता है ना उसका वो होता है hypercholesteremia, यानी when there is the increased level of the cholesterol in the blood, that is known as हाइपरकोलेस्ट्रीमिया. कभी कभार जब आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसका लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर किसी को ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी का मतलब होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी, तो उसकी वजह से भी होता है. ठीक है ना, और तीसरा होता है सिगरेट स्मोकिंग. अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है या टबैको यूज करता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग के अंदर होता है निकोटीन. ठीक है ना, निकोटीन जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और उसकी वजह से जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है ना वो डिस्फंक्शन कर सकते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई वहां पे ब्लॉक हो जाएगा. यहाँ पे जो फैट्स होंगे ना या जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी प्रोटीन है, मैंने बोला आपको, वो वीक पड़ जाएगा और वो it won't be able to transport the fats, or it won't be able to remove the fats from the bloodstream. Okay, एंड नेक्स्ट वन विल बी डायबिटीज. अगर डायबिटीज जिसमें होता है, डायबिटीज का मतलब होता है कि जब वहां पे जो बीटालेट्स जो होते हैं ना, आइलेट बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है ना, वो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी ब्लड के अंदर जो शुगर की लेवल वो बढ़ जाती है. यानी हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है ना, इसमें हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में उसकी वजह से भी हो सकता है. लास्ट वन इज दिस वन ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस आर ऑल अबाउट द कॉजेज. एंड वी कैन आल्सो से, अगर किसी को होगा ना लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डिसऑर्डर होगा, या कोई इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है ना, सो व्हिच हैज लेड टू द सिस्टमिक डिजीजेस, ठीक है ना, दैट मे आल्सो कॉज atherosclerosis. Okay, now next one, let's talk about the this pathophysiology. Okay, types I have already told you. types आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला है. ठीक है ना, टाइप्स मैंने बोला है, डिपेंड्स ऑन दी दिस वन आर्टरीज, जो है ना कोरोनरी आर्टरीज, चाहे अगर बिगेस्ट कोरोनरी आर्टरी है या मिडल या मीडियम है, उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. अगर स्मॉल कोरोनरी आर्टरी को होती है या आर्टरियोल्स को होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेनली
arteriolosclerosis. Okay, now next thing is about the pathophysiology. यानी pathophysiology का मतलब होता है साइकिल, कैसे होता है एक्चुअली कि बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म जो है ना इस डिजीज का, जो कंडीशन का, वो कैसे होता है. ओके, सबसे पहले क्या होता है, जब आपके ब्लड के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होती है, यानी जब आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है एक्चुअली, एंडोथेलियल सिस्टम जो होते हैं वो डिस्फंक्शन करता है. एंडोथेलियल सेल्स कहां पे होती है, वो आपके जो ब्लड वेसल्स होती है उनका जो इनर लाइनिंग होता है ना, सो दे विल बी लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, और वी कैन से व्हेदर इट इज वेन और आर्टरीज. यहाँ पे तो हम आर्टरी की बात करते हैं, तो जो आर्टरीज होंगे ना, आर्टरीज का जो इनर वॉल होगा, इनर साइड का, उसके ऊपर जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं मेनली जिस पर सिग्नल्स करते हैं कैरी किसको, ब्लड को, यानी ब्लड वेसल्स को, ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो. ठीक है ना. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप क्या करते हो, जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो एलडीएल है, जो लो डेंसिटी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन है ना, इट वोंट बी एबल टू रिमूव एक्सेसिव फैट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, कॉजिंग द डिस्फंक्शन ऑफ दिस एंडोथेलियल सिस्टम. जब एंडोथेलियल सिस्टम जो है ना सेल्स, जब वो इफेक्ट हो जाएंगे ना, क्या होता है वहां पे मेनली एलडीएल रिटेंशन, मैंने बोला ही पहले, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होंगे ना वो वहां पे ही अटक जाते हैं, वहीं पे ही रह जाते हैं. ठीक है ना. और जो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये उनको नहीं ले पाता, कोलेस्ट्रॉल को नहीं निकाल पाता ब्लड आर्टरी से या ब्लड स्ट्रीम से, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एडिशन ऑफ द लिपिड्स एंड मैक्रोफेजेस ऑन एंटीमा. जो एंटीमा होता है मेनली, जो ये ब्लड, अगर ये ब्लड वेसल्स है तो ये जो इसका अंदर का जो लाइनिंग है ना, जो इनर वॉल है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो सरफेस होती है, तो उसी सरफेस को या उसी इनर लाइनिंग जो होता है ना आर्टरी का या बस ब्लड वेसल का, उसको हम बोलते हैं एंटीमा. जो एंटीमा होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल या वी कैन से लिपिड्स या वी कैन से मैक्रोफेजेस डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर लाइन, उसके ऊपर जम जाता है, एक्यूमुलेट होता है. ठीक है ना. तो एक्यूमुलेट होता है, क्यों होता है एक्यूमुलेट, क्योंकि वहां पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसीलिए हुआ क्योंकि आपका जो एंडोथेलियल सिस्टम है ना, वो क्या हो जाएगा, वो अल्टर हो गया, वो अच्छे से काम नहीं करता है, वो अच्छे से सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन हो या ब्लड फ्लो हो आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक एथेरोमेटस प्लेक बनता है. यानी यहाँ पे जो है ना लिपिड्स, मैक्रोफेजेस या बाकी जो वेस्ट होती है, ठीक है ना, बाकी जो ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होती है, ठीक है ना, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी सब कुछ एक ही जगह वहां पे एक्यूमुलेट होती है, काजिंग द ब्लॉकेज, और वो वहां पे ब्लॉक करता है, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है, उसी सबस्टेंस को, द सबस्टेंस विच विल बी कॉजिंग, ठीक है ना, विच विल बी कॉजिंग और विच विल बी डूइंग द ब्लॉकेज, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, उसको हम बोलते हैं एथेरोमेटस प्लेक. ओके, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन. तो सही बात है, वहां पे क्लॉट बनेगा, और वहां पे मेनली क्या होगा, क्लॉट जब बनेगा ना, वहां पे देयर विल बी द डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, यानी जो ब्लड सप्लाई है ना, या डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, और ब्लड जो है ना वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, जिसको हम मेनली बोलते हैं ischemia. Okay, so this is mainly about the pathophysiology, how this disease is caused, how this disease is affecting your coronary arteries, understanding. So that is mainly I have told you about through this pathophysiology. So next one we'll be going to see about the diagnostic evaluation. Okay. Okay, so that was all about pathophysiology. Now we are going to talk about the clinical features. So pathophysiology we have seen, etiology we have seen, understanding. So now we are going to see the clinical features. Okay, so mainly when the patient will be coming to the hospital, okay, so the doctor may, ठीक है ना, the doctor may diagnose the patient by getting the following symptoms, okay, yeah, by getting the following signs and symptoms. Okay, the first one is chest pain. Why chest pain? Because there is accumulation of the blood, yeah, we can say accumulation of the fat inside the coronary artery. Okay, so which may lead to the narrowing of that coronary artery, or narrowing and tightening or hardening of that coronary artery may produce the chest pain. Okay, then we can also say numbness. Numbness means weakness, that is the bones, so I mean the muscles will be fragile. Okay, there will be the this one lack of sensation also. Okay, so next one is slurred speech.
Slurs, which means a person will be having a difficulty in speech, difficulty in speaking. Okay, ischemia तो मैंने पहले ही बोला, ischemia का मतलब यही होता है कि when there is a reduced blood flow, यानी when the blood is unable to pass, and when there is a low blood supply, okay, to the certain organs or certain the tissues. Understanding? Next one is the dyspnea. What is dyspnea? Dyspnea is the difficulty in breathing, yeah, shortness of breath. Shortness of breath. Okay, so why? Because when the blood is accumulated in the coronary artery, when there is a blockage, so you are this one heart may not get the enough blood, so which may lead to the difficulty in breathing. Okay, next one is the confusion. Why confusion? Because when the blood supply is being lost to the brain, जब brain में blood supply कम होगी या insufficient oxygen supply होगी, उसकी वजह से confusion हो सकता है, altered mental status हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज द मसल वीकनेस, यानी मसल वीकनेस होगा ही. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द थ्रोम्बस. व्हाट इज थ्रोम्बस? क्लॉट फॉर्मेशन. क्लॉट फॉर्मेशन होगा इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी. एंड लास्ट वन इज द मसल ड्रूपिंग. मसल ड्रूपिंग दैट इज फेशियल, यानी जो फेशियल मसल है ना, वो अच्छे से कंट्रैक्शंस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको मसल फेशियल दिस वन ड्रूपिंग हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग? सो मतलब जो मसल्स, जो आपकी फेस का मसल्स है ना, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और वहां से ब्लशिंग ऑफ द मसल्स हो सकता है. ठीक है ना, या और सारी सिम्टम्स इसमें दिखाई देगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स मूव अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज the patient. ठीक है ना, how we are going to diagnose patient who will be having these symptoms, or who will be having suffering from this disease or this condition. Okay, the first one is history collection. We have to collect the history about the patient. ठीक है ना, maybe the patient was having a systemic disease. ठीक है ना, so maybe he may be getting that problem. Yeah, we can say from the history collection we can also ask the patient whether about the diet, what diet he is consuming and all that thing. Okay, whether he is having the high cholesterol levels in the body and all that thing, that will be getting in order to know the causes. History collection हम इसलिए करते हैं ताकि हम causes को reveal कर सकें, ताकि हम बहुत देख सकें कि किसकी वजह से atherosclerosis हुआ है. Next is the physical examination. Now head to examination we are going to do. So in this we are going to reveal the signs and symptoms. Understanding? For example, अगर हम देखेंगे physical examination के अंदर जो arms होते हैं ना, जो arms होती है और legs होती है, उनका जो muscle है ना, वो बहुत ज़्यादा weak होगा. ठीक है ना, there will be the abnormal muscle contractions. आप लोग अच्छे, ये जो है ना पेशेंट है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, won't be able to perform the ROM, that is activities of daily living. Why? Because there is the reduced blood supply to the certain areas. Okay, which may lead to some peripheral vascular disease also. Okay, next one is blood test. We are going to do the blood test. ठीक है ना, blood test हमें measure करना है. Why? Because this blood test may give you the accurate value of this cholesterol. अगर if there is the hypercholesteremia, this may also indicate that this may be the reason of cardiac atherosclerosis. Okay, next one is the angiogram. What is angiogram? It is the examination. Okay, so it is the examination of the visualization of the coronary artery. यानी coronary artery को हम जब examine करते हैं, ठीक है ना, so that means angiogram or angiography. And next one is the ECG, यानी electrocardiogram. Electrocardiogram में हम देखेंगे mainly electrical activities of heart. ठीक है ना, जिसमें हम ECG में हम देखते हैं mainly electrical impulses जो heart के अंदर वो कैसे होता है. ठीक है ना, वो ओके जब हार्ट में अच्छे से ब्लड नहीं पूछेगा ना, वहां पे तो impaired cardiac circulation होगा. और हाँ, सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर हार्ट के अंदर ब्लड नहीं पूछेगा, ठीक है, when the blood does not reach to the heart, it may lead to the heart attack also. हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट को. ठीक है ना, क्योंकि जब ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज मतलब जब कंप्लीट ब्लॉकेज होगा तो हार्ट को ब्लड पूछेगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है. हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि when the blood is not being received by the heart or at all. Okay, next one is we are going to do the Doppler USG. ठीक है ना, हमें क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करना है. इन ऑर्डर टू वी आर गोइंग टू मेजर द, हमें क्या करना है, मेनली हमें देखना है बॉडी के, यानी इसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, इसके अंदर हमें मेनली एसेस करना है, यानी एग्जामिन करना है, हमें टेस्ट करना है, जिसको थ्रू हमें मालूम हो सकता है कि उसके अंदर ब्लॉकेज है या क्लॉट फॉर्मेशन है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या नैरोड ब्लड जो ना ब्लड वेसल या जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरी है या नहीं है. ठीक है, वो हम मेनली डॉपलर यूएसजी से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एंकल ब्रेकियल. व्हाट इज एंकल? एंकल ब्रेकियल मतलब, एंकल का मतलब हो सकता है लेग्स में और ब्रेकियल मींस आर्म्स. एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि दिस इज वन टेस्ट व्हिच इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दैट हाउ मच ब्लड इज बीइंग सर्कुलेट टू द आर्म्स और लेग्स.
अगर आर्म्स में, अगर जो आर्म्स होगी, अगर वहां पे मसल पेन है या मसल स्टिफनेस है या लेग्स में मसल स्टिफनेस है, तो जिस एरिया में ब्लड नहीं पूछेगा ना, उसी एरिया में मेनली प्रॉब्लम होगा, मेनली ये इफेक्ट करेगा उसी एरिया में। क्योंकि वहां अगर वहां पे अगर आर्म्स के अंदर जो ठीक है ना आर्टरीज है, अगर वहां पे ये क्लॉट पूछेगा या अगर ये वहां पे ब्लॉक करेगा यानी ब्लड सप्लाई वहां नहीं पूछेगा, तो अल्टीमेटली जो है ना मसल वीकनेस होगा ही। ठीक है, द लास्ट वन इज द सीटी एमआरआई, दैट इज सीटी स्कैन। दे आर द इमेजिंग स्टडीज इन ऑर्डर वी आर गोइंग टू विजुअलाइज। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी होती है हम उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके अंदर मेनली फैट डिपॉजिट होते हैं, लाइक दिस विल बी देयर। ओके, सो लाइक फैट डिपॉजिट विल बी देयर, सो दिस विल बी द इंटीमा। ओके, ये हो गया इंटीमा। ठीक है ना, जो मेनली जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग होता है ना, उसके अंदर जो लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, इंटीमा होता है। ठीक है ना, सो इंटीमा जो मेनली हम उसके अंदर देखेंगे, उसके ऊपर ना फैट डिपोजिशन होगा, या फैट डिपोजिशन या सब्सटेंसेस, whether it is macrophages, WBCs, whatever it is. Okay, so in this CT MRI we are going to get the clear pictures, हमें अच्छे से पिक्चर मिलेगा। इसमें हम मेनली एसेस करते हैं, डीपली देख सकते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पे हुआ, किस आर्टरी में हुआ और किस रीजन में हुआ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक evaluation. Okay, now let's talk about the management. Okay, management में मेनली जो आता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एंड सेकंड वन इज द दिस वन सर्जिकल मैनेजमेंट। बेसिकली हमें सबसे जो प्रायोरिटी नीड है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लॉटिंग जो है ना, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो हो रहा है ना, या हम बोले जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉट बनता है, वो चीज हमें पहले रोकना है। यानी आपको पता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होता है या रप्चर होता है, जब ब्लड वहां से लीक होता है, तो क्या होता है, वहां से इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है उस इंजरी को। ठीक है ना, जब वहां पे इंजरी को रेस्पॉन्ड करता है तो वहां पे ना प्लेटलेट्स चले जाते हैं। ठीक है ना, दैट इज T lymphocytes and B lymphocytes, they will be traveling, they will be migrating to the site of injury and they will be forming the clot, that is known as blood, that is known as clotting mechanism या clot formation. ओके, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जिस चीज की वजह से वहां पे क्लॉटिंग होता है उसी चीज को क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है, अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज नोन एज एंटी we can say platelet medications. For example, we are going to give the aspirin because you know that when there is the clotting mechanism occurs, जहाँ पे clotting mechanism होता है ना, so many, there is a rapid amount of, there is a very much amount of the platelets, they will be resembling, they will be coming, they will be accumulating at that area in order to produce the more clotting mechanism, understanding. So उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन देंगे या एंटी क्लॉम्पिंग ड्रग्स देंगे। ठीक है, दैट इज एस्पाइरिन। ठीक है, mainly, and this aspirin we can also give, this will be having the effects of like if the patient is having the chest pain, this can also reduce the chest pain को reduce कर सकता है। ठीक है, so next one is the anticoagulants. If the clot has already formed, what happens, what we can do, we can give this clot breaking medications, जो वो medication जो clot को break कर सकते हैं। ठीक है, so these are known as heparin or warfarin, and we can also give beta blocker C. For example, we can give also the drugs which can this one reduce the activity, hormonal activity, जो हार्मोन्स होते हैं मैंने जो प्रोड्यूस, जैसे फॉर एग्जांपल RAA, that is renin angiotensin converting हार्मोन या renin angiotensin अल्डोस्टेरोन, ये सिस्टम जो होता है ना, जो मेनली मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर, करता है मेंटेन, हार्ट रेट करता है मेंटेन। ठीक है ना, जो मेनली ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो हमें क्या करना है, हमें मेनली देना है ACE इनहिबिटर्स, अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देना है, ताकि ब्लड प्रेशर ना, ताकि वो जो ब्लड प्रेशर जो मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो कम फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कम फ्लो हो जाएगा तो क्लॉट, तो वहां पे ना वो प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, वी कैन आल्सो गिव द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं जिसकी वजह से जो आर्टरी है कोरोनरी वो डायलेट हो सकते हैं और ब्लड आराम से फ्लो हो सकता है। एंड वी कैन आल्सो गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है ना, सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वी कैन आल्सो गिव, लाइक फॉर एग्जांपल निफेडिपिन, वी कैन गिव निफेडिपिन। ठीक है ना, we can give nifedipine, and we can also give some antagonists. ठीक है ना, aldosterone antagonists we can also give in order to reduce or in order to inhibit the activity of the hormones and releasing of the hormones, understanding. So and next one is the
cholesterol medication. We can also give the medications which can relieve or which can reduce the production of the cholesterol in your body. In cholesterol को बनने से रोक, we can give the medications which can improve the LDL, that is low density lipoprotein जो होता है ना, जिसकी वजह से जो cholesterol है ना, वो that will be traveled, that will be transported by the LDL and HDL to the this one liver, or understanding. And we can also give some other medications. For example, under some underlying causes are there, we can give analgesics. If the fever is there, temperature is there, we can also give the antibiotics. We can give, understanding, acetaminophen we can give, and we can give also opioids, that is pain medications. Okay, so now next one, let us go for the further, that is surgical management. In the surgical management, the first thing we need to do is endarterectomy. What is endarterectomy? It is the removal of the cholesterol from that blocked area. जहाँ पे ब्लॉक हुआ है वहां से हमें क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल एरिया को ही हमें रिमूव करना है, कोलेस्ट्रॉल को ही रिमूव करना है। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जो वहां पे डिपॉजिट हुआ है, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा, बल्कि कोलेस्ट्रॉल के साथ बाकी सब्जेक्ट्स, ये सॉरी सब्सटेंस होगा, मैक्रोफेजेस होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, ठीक है ना, बी सेल्स, टी सेल्स, वो सब कुछ वहां पे डेवलप हुआ होगा, नहीं डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से प्लेक बना हुआ, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम एंडाटेरेक्टोमी कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो डू द CABG, दैट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, यानी बाईपास ग्राफ्ट, यानी इसमें हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जो कोरोनरी आर्टरी है ना, तो उसमें हम मेनली क्या कर सकते हैं, स्टेंट प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है मेनली एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इज मेनली द प्रोसीजर इन विच द डॉक्टर ही विल बी पुटिंग और ही विल बी डेवलपिंग और ही विल बी अडैप्टिंग वन ट्यूब, ठीक है ना, वन लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी इन ऑर्डर टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगा, सो फॉर एग्जांपल अगर ये कोरोनरी आर्टरी फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनली this one will be the stent. When the stent is placed, okay, when the metal stent is placed inside the coronary artery, or we can say, and what will be happening, the blood will be, this one will be breaked, ठीक है ना, जो फैट डिपॉजिट होगा यहाँ पे, ये खुद ही क्या हो जाएगा, ये खुद ही ब्रेक हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हम इसके साथ हमें देना है मेडिकेशन, ठीक है ना, एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन एंड एंटीकोगुलेंट। जब हम ये देंगे, ये देने के बाद हम मेनली क्या कर सकते हैं, हम स्टेंट प्लेस कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है ना, थ्रू सर्जरी, एंड देन व्हाट, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द ब्लड circulation. So the last thing is that is about the prevention and control, how we can control this atherosclerosis and how we can prevent the occurrence of the disease or complications after the surgery, understanding. So what we have to do, mainly we have to quit the smoking, we have to quit the alcoholism, we have to quit the, and we need not to take the cholesterol, the diets which contains cholesterol or which contain sugars, ठीक है ना. So by this thing we can maintain the personal hygiene, we can have the regular checkups, ठीक है ना, we can take the medications at the proper, the patients can take the medication at the proper time. As a nurse, we should give the health education to the patients in order to maintain their healthy lifestyles, understanding, so in order to prevent from the infections and promotion of the health states.